As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world. The responsibilities of the Quad will grow commensurately. दिल्ली में हुई क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री सहयोग, सप्लाई चेन और आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कहा कि क्वाड देशों के बीच बातचीत बेहद सार्थक और उत्पादक रही और आने वाले समय में आपसी सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा कि दुनिया इस वक्त कई बड़ी चुनौतियों से गुजर रही है और क्वाड देशों ने मौजूदा वैश्विक हालात पर गंभीर चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्वाड होने के नाते चारों देशों का फोकस स्वाभाविक रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर रहा, क्योंकि ये चारों देश समुद्री लोकतंत्र हैं और इंडो पैसिफिक के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं। ऐसे में विचारों का आदान प्रदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world. The responsibilities of the Quad will grow commensurately. जयशंकर ने इस दौरान ये भी कहा कि आज वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन पर दबाव है, कई समुद्री रास्तों पर संकट बना हुआ है और दुनिया को कनेक्टिविटी चोक पॉइंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और जरूरी संसाधनों के केंद्रीकरण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना होगा और भरोसेमंद और पारदर्शी साझेदारी को और आगे बढ़ाना होगा। Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities. We will be continuing to deepen these areas in the times ahead. We spent some time on the question of safe and unimpeded maritime commerce and reaffirmed the significance of scrupulously observing international law. Our four nations are also market economies. We believe strongly that economic resilience should be promoted, that supply chain should be strengthened, trusted and secure technologies diffused, and production capacities enhanced. वहीं इस बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठा। विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ क्वाड देशों की जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने कहा कि जिन देशों पर आतंकवादी हमले होते हैं उन्हें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये बयान ऐसे समय में आया जब दुनिया के कई हिस्सों में आतंकवाद और कट्टरपंथ को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. क्वाड बैठक में होर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि समुद्री व्यापार बिना किसी रुकावट के जारी रहना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन हर हाल में होना चाहिए। दरअसल होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है और यहाँ किसी भी तरह का तनाव वैश्विक सप्लाई चेन और ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है।
ऐसे में क्वाड देशों का ये संदेश काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बैठक के दौरान जारी संयुक्त बयान में भी समुद्री सुरक्षा, निगरानी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, पनडुब्बी केबल, ट्रेनिंग, क्षमता निर्माण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही गई। इसके अलावा चारों देशों ने सुरक्षित और मजबूत ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने, विश्वसनीय इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने और ऊर्जा व खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी सहमति जताई। कुल मिलाकर दिल्ली में हुई क्वाड बैठक ने साफ संकेत दिया कि इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती आक्रामकता, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर क्वाड देश अब और ज्यादा तालमेल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं भारत ने भी इस मंच के जरिए साफ कर दिया कि क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख और वैश्विक स्थिरता के मुद्दों पर बड़ी भूमिका निभाने के लिए वो तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।